A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum. Welcome to Pep Talk Pakistani show. Thank you so much everyone for your appreciation of my previous videos. As you know, the main objective of Pep Talk Pakistan is to show the positive image of Pakistan to the world. The purpose of Pep Talk Pakistan is to discuss different aspects of organizational culture with renowned people from the corporate sector. Ladies and gentlemen, today we will be having a discussion over how to file a complaint against a cybercrime in Pakistan with our guest barrister Hamna Shah. This session will be in two medium. One is Urdu and second is English, so the maximum people can reach to us. Ladies and gentlemen, I am super excited today because the conversation that we're going to have today with our guest. Joining us today, a superwoman, great professional, and a wonderful human being, amazing visionary. You know, when I say amazing, I mean it. You know what's special about her? She loves to helping law students and lawyers, giving free lectures to them. She strongly believes that you and everything you want is only one communication away. As you listen to her story, you will notice the purpose in your own voice. But Hamna Shah is one of the renowned personality in corporate sector, barrister at law from Lincoln, UK, and advocate High Court, 10 years legal practice specializing in corporate law, actively working with High Court committees of Lahore, working on gender equality, sexual harassment, international legal affairs, and educational committee of Lahore High Court. Well, I am talking about today's guest, and her name is Barrister Hamna Shah. She's having 10 years working experience. She has worked with different companies like Bateen, KESC, Coca-Cola, and many. She's also working as a consultant for few companies. Currently, she's working with Bateen in the capacity of senior legal counsel. Ladies and gentlemen, today our guest will be sharing her views on how to file complaint against a cyber crime in Pakistan. Ladies and gentlemen, let's welcome Barrister Hamna Shah. Hamna, it's good to have you here. Thank you so much for joining us. Assalamu alaikum everyone, and Hassan, thank you so much for having me on your show and for such a generous introduction. I think your platform, it's a very great initiative that you have taken, and it's a great platform not just for professionals like us, but also for the upcoming professionals, or nice sort of upcoming professionals, but balki for the general masses of Pakistan, because I think everybody gets a chance to learn from each other's experience. So aapke jo guest hote hain, wo sara topics hote hain, they're very interesting. So I think brilliant initiative by you. Thank you, Hamna. Thank you very much. अच्छा हमना हम जरूर डिस्कशन करेंगे। वो जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग तो है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग विक्टिम है साइबर क्राइम के। आज हम इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन जैसे कि आपको पेप टॉक पाकिस्तान शो का एक फॉर्मेट है, और फॉर्मेट ये है कि जो भी गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं, हम उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी और उनसे उनकी स्ट्रगल जो है वो जरूर सुनते हैं। तो हमना सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि when you have started your career, so what kind of difficulties that you have faced? अच्छा, पहले तो सक्सेस स्टोरी का आई थिंक डिफिकल्टीज तो थी बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन सक्सेस स्टोरी की आई थिंक बीइंग अ वुमन इन दिस वर्ल्ड एंड ब्रीदिंग एंड सर्वाइविंग इटसेल्फ इज अ सक्सेस। सो ये मेरे ख्याल से हर औरत के लिए एक सक्सेस ही है कि इतने डिफिकल्ट और इतने मेल ओरिएंटेड दुनिया में, नॉट जस्ट द सोसाइटी बट द वर्ल्ड इटसेल्फ, so you know we are surviving, and hats off to all the women out there. As far as success is concerned, Hassan, I think it's a relative term because success हर बंदे के लिए different होता है. So for me, I think I haven't reached that point yet, and I hope I don't, because if I do reach that point जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं successful हूँ, फिर I will be at the stage जहाँ पे मैं learn करना खत्म कर दूँ. You stop learning. So सक्सेस वही बात है कि डिफरेंट हर किसी के लिए होता है, बट चैलेंजेस की जहाँ पे मैंने बात की है, बिल्कुल आप चैलेंजेस हर इंसान फेस करता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आता है, एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स तो बीइंग अ
female lawyer, you know, I did my LLB and then I went for my bar at law to London. तो bar at law करने के बाद जब मैं आई हूँ वापस पाकिस्तान, तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की अपने आपके जो लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कराची के, एंड दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज पहले मेरा इनिशियल इंटरेस्ट लिटिगेशन में था और मैं लिटिगेशन में मैंने कोई 2-2.5 साल जो है वो इनिशियल लेवल पे काम किया। अच्छा, उसमें चैलेंजेस तो थे, देखिए एक्सेप्टेंस, अब कोर्ट जाना, कोर्ट में लोगों की एटीट्यूड, जिस फर्म के साथ आप एसोसिएटेड हो उधर वहां पे पीपल यूज्ड टू थिंक ओके शी इज, यू नो, वी विल हैव टू प्रोटेक्ट हर इफ शी गोज टू कोर्ट। एक बर्डन समझा जाता है औरतों को जनरली। ये मैं सिर्फ एक ऑफिस या दफ्तर या उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आई थिंक सो एवरी वुमेन फेस दिस चैलेंज, एंड कोर्ट्स जाना, लेके जाना इटसेल्फ यूज्ड टू बी लाइक अ चैलेंज कि भाई आपके सीनियर एसोसिएट्स, आपके पार्टनर्स कि ये इसकी वील हैव टू टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, और एक लड़की है, अच्छा ये तुम ऐसा करो कि ये काम कर लो, ऑफिस में कर लो, फर्म में कर लो, ये कर लो, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग कर लो आप, ये इस तरह की चीजें। तो वो चले, वो एक चैलेंज तो था ही था, आपको भी पता होगा, एवरीबडी नोज द व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ आवर कोर्ट्स, नॉट वेरी वेलकमिंग। देन आई स्विच टू बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर, आप जिसको ट्रांजैक्शनल लॉयर कहते हैं, कॉर्पोरेट इन हाउस लॉयर कहते हैं। तो वो मैं इसलिए स्विच नहीं की कि चैलेंजेस थे, इसलिए स्विच किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मेरी इंक्लिनेशन थी, आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बीइंग you know more of like how the company runs and you know working for a company. So when I switched to K Electric, so मेरी पहली कंपनी थी, I worked there, K Electric और Coca-Cola, you know, multiple companies, तो अब वतीन में हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रही हूँ कि एक एक्सपीरियंस चैलेंज क्या होता है एक औरत के लिए कि इनिशियल लेवल पे, ठीक है, फर्स्ट कंपनी में मेरी कि you are not acknowledged. So the women, if there is a room and you have to go and be, for example, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ जिसपे मैंने निगोशिएट करना है इनिशियल लेवल पे से लेके अब तक की मैं बात कर रही हूँ, अब तो चलो आई थिंक आई बिकम हेड स्ट्रॉन्ग, तो अब दीज थिंग्स डोंट मैटर, लेकिन इनिशियल लेवल पे हर किसी को ये चीजें डिस्करेज करती थी कि एक रूम फुल ऑफ मेन एंड अ वुमन एंटर्स एंड शी इज ऑल सेट फॉर हर नेगोशिएशन एंड यू नो, एंड she will not be acknowledged, she will not be greeted, her opinion obviously would not matter at all, and people are uncomfortable with you. So I don't know, एक certain hostility और एक environment create किया जाता था। खैर वो time हर किसी के ऊपर होता है, women do feel that way। अभी भी मुझे लगता है कि औरतों को जब वो जहाँ काम करती हैं, people think कि women are, if she's hired and she's working in a company or anywhere, she is probably an intern or a secretary. So coordinator, secretary, intern level से ज़्यादा people don't think of women that way, because somehow I think it's very unfortunate कि society का जो mindset है और perception है वो ये है कि women are less, you know, probably less smart than men or they have less intellect. So वो तो बस यही छोटे मोटे कैलेंडर वगैरह संभालने वाले काम कर सकती हैं और इस तरह के, so प्रोफेशनल्स बहुत कम समझी जाती हैं, स्पेशली हमारे माशरे में। मैं आई थिंक ये हमारे सोसाइटी में तो ये एक इनग्रेव्ड सिस्टम सोच आई। आई वर्किंग विद हाई कोर्ट कमिटीज जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की बड़ी एक्टिवली, जेंडर इक्वालिटी की कमेटी आपकी सेक्सुअल हरासमेंट की है कि वुमेन शुड बी मोर कॉन्फिडेंट, दे शुड कम आउट, दे शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक ये ओवरऑल एक जो है एक जनरल परसेप्शन और जनरल चैलेंजेस जो मेरे थे, और वो सिर्फ मेरे नहीं थे, आई एम श्योर आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वुमन आउट देयर। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, हम ना एक सवाल और जो हम गेस्ट से पूछते हैं टॉपिक से पहले, और वो सवाल होता है रेफरेंस का। पाकिस्तान में बड़ा अलमिया है, यहाँ अगर हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, बीइंग एचआर प्रोफेशनल हमें तो ये बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, और आप भी माशाल्लाह लीगल में हैं तो आपने भी ऐसे सवाल सुने होंगे। वो कहा जाता है कि हसन भाई मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरे पास रेफरेंस नहीं था। तो आप क्या, जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया तो क्या आपके भी कोई रेफरेंस काम आया? तो आप क्या समझती है कि रेफरेंस जो है वो कहाँ तक आपको लेके जाता है? अच्छा, रेफरेंस आई थिंक कि देखिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी रेफरेंस की जब मैंने अपना काम शुरू भी किया था। इनफैक्ट मैंने लॉ फर्म से स्टार्ट किया था। सो जिस लॉ फर्म में मैं थी, मोस्टली ये परसेप्शन होता है कि लॉयर्स को पता होगा ये बात अगर वो सुन रहे हैं कि लॉ फर्म्स में रेफरेंस से जाना है और कंपनीज में भी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। बट आई थिंक कि मैंने ये फर्क देखा पाकिस्तान में तो है ही है। मुझे लगता है कि
सिटी वाइज होता है, डिपेंड करता है। मुझे इनिशियल कराची में तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी थी। आई थिंक अगर आपका मेरिट हो तो फिर रेफरेंस की जरूरत ही नहीं होती। रेफरेंस आई थिंक इट मैटर्स अ लिटिल बिट मे बी इन केसेस लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर जैसी जगह पे हो या फिर आप इस तरह के शहर में हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड है कंपेयर टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहां पे रेफरेंस की शायद प्रोबेबली पुश के लिए जरूरत पड़ जाती है। लेकिन पुश के अलावा ऑनेस्टली व्हाट एल्स वुड अ रेफरेंस डू इफ समबडी इज हायर्ड और वो इस काबिल नहीं है, कॉम्पिटेंट, दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क, यू नो, उस रोल के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो फिर रेफरेंस कितनी भी लग जाए, मेरे ख्याल से तो प्राइम मिनिस्टर की रेफरेंस भी लग जाए तो वो एंड में तो उसने डिलीवरी करना है। सो आई थिंक इट, मेरे लिए आई थिंक इट डज नॉट मैटर। हमारे मुल्क में थोड़ा ये कल्चर है रेफरेंस का और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है क्योंकि लोग अब ज्यादा कॉम्पिटेंट होते जा रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं मेन स्ट्रीम में। So I honestly think a reference should not matter and everybody should be judged on their merit and competency. Great, wonderful. हम ना अब हम बात टॉपिक और टॉपिक है हाउ टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट अ साइबर क्राइम इन पाकिस्तान। हम ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं सिर्फ साइबर क्राइम की वजह से, जहाँ पर सोशल मीडिया के फवाइद हैं वहाँ पे सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं और अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफी दे, बहुत सारी जिंदगी जो है वो सोशल मीडिया ने ले ली। वो कहते हैं ना कि बंदा मरता नहीं है, उससे लोगों की बातें मार देती है, उसको लोगों के रवैये मार देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होगा वो ये होगा बैरिस्टर साहिबा कि आप हमें ये बताइए कि साइबर क्राइम है क्या। देखिए साइबर, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि लोगों की जिंदगियां भी खराब हुई, सारा कुछ। मैं पहले उस टॉपिक से आने से पहले मैं आपको, जैसे आपने कहा साइबर क्राइम होता क्या है, सबसे पहले आई थिंक वी शुड ऑल नो दैट व्हाट साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम है क्या, ठीक है? ये साइबर क्राइम इस तरह का एक ऑफेंस है, वो जुर्म जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कोई क्राइम या ऑफेंस, ठीक है, सो ऑफेंस हुआ है वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। वो आपका लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, आपके मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है, सो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो जुर्म हुआ है वो साइबर क्राइम में आ जाता है। और इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं और कई तरह की हैं। हमारे लॉ जो अभी एग्जिस्ट करता है वो साइबर क्राइम के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 दैट एग्जिस्ट, और उसके अंदर के सारे जो हैं जुर्म इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के कवर्ड हैं। Great. So, Hamna, can you hear me? जी, sure, I can hear you. जी, सो हसन, मैं ये बता रही थी कि साइबर क्राइम होता क्या है बेसिकली। इसकी कैटेगरीज पे भी हम नेक्स्ट चले जाते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। जी हमदा, यू कैन कंटिन्यू। जी, सो साइबर क्राइम का मैं बता रही थी कि जो इस तरह का ऑफेंस जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आए वो साइबर क्राइम है। और इसमें आजकल की जो चीजें बड़ी कॉमन हर बंदा फेस कर रहा है वो क्या क्या होती हैं। देखिए, ये हमारा कानून जो मैंने अभी बताया आपका कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसमें आपकी साइबर बुलिंग आ गई, इसमें पिक्चर्स लीकिंग आ गई, वीडियो लीकिंग आ गई, सोशल मीडिया हरासमेंट हो गई आपकी, मोस्ट साइबर स्टॉकिंग बहुत ज्यादा लड़कियां मोस्टली फेस करती हैं, फेक आईडीज बनती हैं आपकी, ब्लैकमेलिंग होती है, थ्रेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, फाइनेंशियल क्राइम किसी भी तरीके का, उसमें सिम वगैरह, ये सारी चीजें। सो ये सारी हेट स्पीच हो गई, डेफमेशन हो गई, साइबर डेफमेशन, तो ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। सो और आजकल लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली, कोविड के टाइम पे मैंने देखा कि लोग, मेरे पास पर्सनली भी बड़े मैटर्स आए, केसेस आए कि पीपल आर एक्चुअली फेसिंग दिस इशू दैट जो साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज लोग प्रोबेबली दे वर फ्री एट होम, या क्या उनकी फ्रस्ट्रेशंस थी जो निकल रही थी बाहर, और लोग बहुत अपसेट, तो बहुत छोटा टर्म है, आई थिंक इट इज बियॉन्ड, लाइक इट इज डेविस्टेटिंग, बिकॉज एक बंदे की, एक लड़की या लड़के की जिंदगी चेंज हो जाती है, उनके ऊपर फिर एक काउंसलिंग भी होती है और एक बहुत ही साइकोलॉजिकली बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। एग्री। अच्छा हम ना, जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि अब हमें पता चल गया कि यार ये सारे एक्शन साइबर क्राइम के जिम्मे में आते हैं और
वी हैव द क्लैरिटी कि अब साइबर क्राइम है। अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है जी, अब आप ये बताइए, जो हमें लोग देख रहे हैं और बाद में भी हमें देखेंगे, कि हम किस तरह से, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके एक जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकें। अच्छा, इसकी साइबर क्राइम की ना ये बड़े आई थिंक इसमें वकील की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर कोई बंदा साइबर क्राइम का कोई इस तरह का इशू फेस कर रहा है, मैटर, उसको वकील के अलावा मैं अब ये बताने लगी हूँ कि व्हाट आर द प्रिवेंशंस एंड व्हाट इज द प्रोसीजर दैट अ पर्सन कैन टेक, अ ग्रीफ पार्टी विक्टिम कैन टेक। सो इसमें सबसे पहले, बिफोर आई गो टू द प्रोसीजर, मैं आपको बताऊं कि साइबर क्राइम की, जैसे मैंने आपको कानून बताया, वो कानून आई थिंक छोटा सा है, हर बंदा जाके देख ले, उसको पढ़ ले, ये बड़ा एक कॉमन टाइप सिचुएशन बन गई है। इसमें जो अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो कि जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कह दो, वो आपकी है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम। सो FIA साइबर क्राइम इज द मेन अथॉरिटी, ठीक है। और उनके पास ये बेसिकली, अगर कल को कोई भी इंसान फेस कर रहा है, साइबर बुलिंग हो गई, स्पैमिंग हो गई, स्पूफिंग हो गई, आपकी कोई भी थ्रेट्स हो गए, वीडियो लीकिंग, तो वो जाके FIA साइबर क्राइम को कांटेक्ट कर सकता है। अब कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, वो 3 डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट 4 डिफरेंट तरीके हैं साइबर क्राइम को करने के, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करने के, कंप्लेन आपने रजिस्टर करनी। पहला तरीका, आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनका वेबसाइट दिया हुआ है ऑनलाइन, सो आप उनकी हेल्पलाइन 9911, यू कॉल their website, ठीक है। नंबर 1 is that. नंबर 2 is that एक उनका ईमेल एड्रेस है, आप उनके ईमेल एड्रेस पे अपना इशू लिखें। उनका ईमेल एड्रेस मैं आपको बता भी देती हूँ, helpdesk@nr3c.gov.pk। सो helpdesk@nr3c.gov.pk, ये इनका ईमेल एड्रेस है। तीसरा तरीका, आपकी उनकी वेबसाइट पे जाएं, nr3c.gov.pk उनकी वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे, उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। उसके अंदर आपका वो शनाख्ती कार्ड मांगेंगे, CNIC कॉपी होगी, उसमें आपसे एक एक कॉलम आएगा जिसमें आपसे पूछेंगे कि इंसिडेंट बताएं, तो उसमें आपने इंसिडेंट लिखना है कि जी ये इस बंदे ने थ्रू दिस चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू मुझे भी किया, जो भी प्रॉब्लम, तो वो कंटेंट उसमें डाल दें आप, अपना इंसिडेंट वगैरह जो भी आपके साथ हुआ, और आपने स्क्रीनशॉट जरूर अटैच करके उसके साथ भेज देनी है। सो ये 3 तरीके आपको मैंने बता दिए। चौथा तरीका, अच्छा इसमें सबसे जो मैं चौथे तरीके पर आती हूँ, सबसे जो आई थिंक जो वो इफेक्टिव तरीका है, वो ये थर्ड वाला है कि कंप्लेंट फॉर्म जाके आप भरें उसमें, nr3c.gov.pk की वेबसाइट पे जाके, आपको बड़ी आसानी से, वेरी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। चौथा तरीका ये कि आप पर्सनली जाके विजिट करें इनके ऑफिस में, ठीक है, पर्सनली जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके इनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में, क्वेटा, पेशावर। तो आप रिटन एप्लीकेशन दें, जैसे हम एक रिटन एप्लीकेशन में सारा लिखते हैं कि ये इंसिडेंट है, उसमें CNIC होगी, इंसिडेंट होगा, उसमें एप्लीकेशन FIA को आप एड्रेस करेंगे, उसमें CNIC डाल दें, कॉपी, स्क्रीनशॉट, और आप अपना वो उनको जमा कर दें। अच्छा, फोर्थ मीडियम पे लोग कतराते हैं, बिकॉज लड़कियां होती हैं मोस्टली, दे डोंट वांट टू बी डिस्क्लोज, उनको अपनी कॉन्फिडेंशियल शनाख्त वगैरह वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हैं। तो आई थिंक ये थर्ड तरीका बेस्ट है, या हेल्पलाइन पे कॉल करें अगर फिर अर्जेंट। इसमें होता ये कि ये जब सारा आप प्रोसीजर कर लेते हैं ना, तो इसके बाद आपकी जो अथॉरिटी है, FIA साइबर क्राइम, अच्छा ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो अलॉट कर देते हैं। वो जब IO आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉट हो जाता है, तो फिर वो मोस्टली जो विक्टिम होता है, या विक्टिम का अगर वकील है, तो वकील है अगर, तो वकील को बुलाया जाता है, या फिर विक्टिम है तो उनको बुलाया जाता है उनके ऑफिस में, और उनकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड जरूर ली जाती है। सो स्टेटमेंट और वेरिफिकेशन होती है, वो जरूरी होती है, आप साथ CNIC दे दो। ये सेकंड स्टेप होता है आफ्टर द कंप्लेंट। और उसके बाद फिर उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि FIA कोर्ट, साइबर क्राइम जो है, वो कोर्ट से ऑर्डर ले, जब पता चल जाए कि ये सारी चीजें हुई हैं, कोर्ट से ऑर्डर ले उस बंदे के खिलाफ, कोर्ट वारंट देता है, फिर वो आप जो है वो वारंट फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पे जाके आप शेयर करें, और वो फिर वहां से एक्शन ये लेंगे कि वो अपने एंड से उसको ब्लॉक कर देंगे। अब पाकिस्तान से एंड से ये होगा कि वो IP जो है उस बंदे की, एड्रेस, नेम और द प्रोसेस, वो सारा कुछ रिमूव, ब्लॉक हो जाएगा। सो आपका जो एविडेंस है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस आ जाती है, उसके अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंप्लीटली वाइप आउट कर देते हैं।
तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है मामला। अच्छा, इस दौरान बंदा अरेस्ट भी होता है, सो ये सेंस है क्योंकि ये क्राइम है, जुर्म है, सो जुर्म में वो अरेस्ट भी होता है। ये सारे जो मैंने आपको नाम बताया, स्पैमिंग, स्पूफिंग, अच्छा साइबर टेररिज्म भी एक अलग क्राइम है जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है, इस पे भी अरेस्ट किया जाता है और वो नॉन बेलेबल होता है। इसके अलावा ये थ्रेटनिंग, ब्लैकमेल वगैरह, इसमें भी बंदा अरेस्ट किया जाता है। फेक आईडी के ऊपर आपका पूरा सेक्शन है, ठीक है, उसमें बंदा अरेस्ट होता है, उसके अंदर उसकी मिनिमम सजाएं 3 महीने से आप 10 साल तक जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट सजाएं हैं फॉर ईच एंड एवरी ऑफेंस दैट यू हैव कमिटेड, एंड उस पर फाइन जुर्माना भी होता है। ये या दोनों लगते हैं जुर्माना या फिर वो आपके फाइन लगते हैं। तो ये तरीका है आपका एफआईए का पास कंप्लेन लॉन्च। वंडरफुल, वंडरफुल हमना, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हमना, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें रिसीव हुए थे, लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, और इवन के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी। तो सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं ले सकता, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लिए थे, और हमारे शो का फॉर्मेट ये है कि हम लाइव क्वेश्चन जो है वो नहीं लेते हैं। अच्छा हमना, एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया और वो ये था कि सर अब देयर इज अ सिचुएशन कि एक बंदा या बंदी पाकिस्तान में नहीं है और वो पाकिस्तान से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, और वो किसी बंदे की रेपुटेशन या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे वो मतलब जो है उल्टी पुल्टी चीजें, कुछ इस तरह की चीजें जिसके उसके बारे में लिख रही है, तो क्या हमारा जो लॉ है वो क्या हमें सपोर्ट करता है? क्या वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि जो बंदा जिसके साथ हो रहा है विक्टिम वो पाकिस्तान में है, क्योंकि हाँ, वो अगर वो पाकिस्तान बंदा में, वो वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। बिल्कुल। इसमें ये है कि बिल्कुल हो सकता है, ये भी लॉ के अंदर आपका सबसे पहले जो सेक्शन आ जाता है वो ये कि दिस लॉ, दिस एक्ट मैंने बताई थी 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स, एंड आल्सो उन सिटीजन्स के लिए जो रह रहे हैं लेकिन जुर्म उनके ऊपर हो रहा है लेकिन कोई बाहर से कर रहा है। सोशल मीडिया का तो आपको पता है बाहर से भी क्राइम, जैसे आपने बताया, ऑफेंस हो सकता है। तो ये बिल्कुल वो एक्शन ले सकता है, क्योंकि देखिए बंदा पाकिस्तान में रहता है, वो सिटीजन है पाकिस्तान का, तो उसका ये हक है, उसका राइट है कि वो अंडर दिस, ये जो कानून है उसके अगेंस्ट, ये उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन ले, चाहे वो बाहर है। उसकी देखें जो उसकी शनाख्त का जो ऑफेंस का जो सारा कंटेंट है, क्या हुआ आपके साथ इंसिडेंट, वो सारा तो उसी तरह सबमिट होगा। फिर ये सोशल मीडिया का वही वारंट लिया जाएगा, फिर वो सोशल मीडिया के पास जाया जाएगा। सो वो बिल्कुल ले सकते हैं, ही दैट पर्सन हैज द राइट टू टेक एन एक्शन। ग्रेट। अच्छा हम ना, अब अगला क्वेश्चन वो ये है कि बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि साइबर क्राइम क्या है, हमें भी पता चल रहा है कि साइबर क्राइम की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से हमने सबमिट करनी है। थैंक यू वेरी मच आपका कि आप हमें बता रही हैं। अच्छा हम ना, अब हम जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि अब हम हमसे ये पूछना चाहेंगे कि अब हमें पता चल गया यार किसने साइबर क्राइम कर दिया, मतलब इस बंदे ने, ये जो है वो मुलजिम है या जो मुजरिम है जो भी है, तो अब कौन कौन सी सजाएं जो हैं वो उसको दी जा सकती हैं, वो जरा आप हमें बताइए। अच्छा, इसमें पनिशमेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अब ये है कि हमारे मुल्क में कानून तो बन जाता है, लॉ तो है, हर चीज का लॉ है। आपके पाकिस्तान पिनल कोड से लेके आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर्स भी हैं, उसमें सारा कुछ है। ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था 2016 में जो ये एक्ट आया, इसमें इन्होंने कानून बना दिया सारा कुछ। इसके अंदर क्योंकि अब ये रिलेटिवली नया है और मॉडर्न एक जब से ग्लोबल दुनिया हुई है, सो ये बहुत चीजें बढ़ रही हैं। ये जो आपकी सेंटेंसिंग होती है, जो आपकी पनिशमेंट है, ये हर, मैंने आपको जैसे बताया कि ये हर एक्ट के ऊपर डिफरेंट है। तो अगर आपने साइबर टेररिज्म है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, वो एक सेक्शन है उसके अंदर कवर होता है, वो आपने किया तो आपकी सजा अप टिल, सो लॉ हमेशा कहता है कि अप टिल आपकी 10 साल तक हो सकती है, और उसके ऊपर कोई अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन कोई 10 मिलियन या इस तरह का जुर्माना भी है, फाइन। सो या इट्स दैट और बोथ, सो इट्स अ सीरियस थिंग, ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके अलावा आप आ जाएं इस पे फेक आईडी बनाने पे, अनऑथराइज मटेरियल डिस्क्लोज करने पे, उसके ऊपर भी सजाएं हैं। सो ये 3 महीने से लेके उस बंदे को 3 महीने इम्प्रिजमेंट से लेके ऑनवर्ड्स इट कुड गो टू 3 years और 5 years। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, डिफरेंट भी है। अच्छा, अगर माइनर पे किया गया हो, अगर किसी छोटे बच्चा, माइनर मीन्स के कानून में माइनर जो है वो आपका होता है 12 साल से कम का बच्चा,
12 साल, अच्छा ये डिफरेंट, ये इसके ऊपर भी डिफरेंट है, लेकिन जो छोटे बच्चे के ऊपर है 12 अंडर, तो उसके ऊपर अगर किसी ने साइबर क्राइम किया है तो उसका कोई हरासमेंट या लीकिंग या पिक्चर्स या उसके ऊपर कोई इस तरह का मटेरियल लीक हुआ है, उस बंदे पे एग्जैक्ट अगर उसने वो काम किया है, तो अगर उसने एडल्ट पे किया तो 3 साल, और अगर उसने डिस्क्लोज की छोटे बच्चे की किस तरह के पिक्चर्स हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स, तो 5 साल की सजा। सो माइनर के ऊपर ज्यादा उन्होंने सख्ती की हुई है लॉ ने, लेकिन डिफरेंट सजाएं हैं। सो मैं ये बता रही हूँ कि सजाएं हैं बिल्कुल। अब क्या ये सजा मिलती है नहीं मिलती है, दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट देयर ऑब्वियसली, बिकॉज देखिए व्हेन देयर इज अ लॉ देयर देन पीपल डू गेट, दे नो कि लॉ है, और फिर वो डर लगता है उनको, तो पीपल शुड नो कि ये एक्शन अगर लिया जाता है एफआईए में और जाके वो बंदा अरेस्ट होगा, तो उसके ऊपर डेफिनेटली उसको जेल में भी लेके जाया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, उस पर फाइन भी लग सकती है। तो वो मुजरिम तो बन गया, वो कानून में एक मुजरिम बन गया, तो उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया। तो ये जो भी इंसान आपको, अच्छा इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर ये जो लॉ है हमारा, ये कहता है कि अगर लोग आपस में जो फेसबुक में बड़ा आप लोगों ने देखा होगा सबने, एक कोई बात चलती है फिर दूसरा उससे बात करता है, तो उसमें वो डिबेट हो जाती है और एक दूसरे से बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं, अब्यूजिव मटेरियल ये वो, तो वो बदतमीजियां वो होती है आपकी डेफेमेशन के अंदर भी आ सकती है, ठीक है, उसके ऊपर भी जुर्माना आपका है, वो बंदा भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर फॉल करेगा। जो इसके अलावा भी छोटी चीजें, जैसे आपको सारा दिन, मतलब वुमेन डू फेस दिस अलॉट, औरतों को, कि ये कॉन्स्टेंटली कोई कॉल कर रहा है, अगर 50 से टाइम से ज्यादा उसने कॉल किए ना आपको, वो साइबर स्टॉकिंग में आ जाएगा, उसको भी गिरफ्तार, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है उस बंदे पे, उसके ऊपर भी पनिशमेंट है, उस पर भी फाइन है। इसी तरह मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, और हर चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया है, इसमें जो भी हम करते हैं, ठीक है, आपके फेसबुक हो गए, नंबर्स हो गए, सारा कुछ हो गया, ये सारा रिकॉर्ड होता है। सो यू नो, ये डोंट, पीपल शुड नो कि ये किसी को ब्लैकमेलिंग करने से पहले ना 2 मिनट सोच लें, कि जरा एक दिन लगा के कि यार मैं एक लड़की को थ्रेट कर रहा हूँ, उसको स्टॉकिंग करना, कॉन्स्टेंटली किसी इंसान को स्टॉक करना ये सोशल मीडिया पे, उसकी ईमेल्स वगैरह लीक होना, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक जुर्म है, और आप उसके ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली यू विल बी लायबल फॉर इट। अगर लोगों को पता हो ना कि कानून क्या है, तो फिर कोई भी दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती कि वो जाके उसके ऊपर एक्शन ले, तो फिर वो पीपल गेट स्ट्रॉन्ग एज वेल। सो ये कानून आप लोगों के लिए बने हुए हैं, इट इज फॉर द मैसेज, एंड आई थिंक यू शुड नो। एंड एवरी, ये बिफोर आप मैसेजिंग करते हैं लड़कियों को, मोस्टली लड़कियों को ये आती है, मैं बार बार लड़कियां कह रही हूँ, लेकिन मैसेजिंग आती हैं, कॉल्स आती हैं, ठीक है, मुझे इतनी आती हैं, मुझे कॉन्स्टेंटली अननोन नंबर से एक फेस चलता है कि कॉल्स आती है, ब्लॉकिंग, मैंने एप्लीकेशंस भी अपनी उस पे अगेंस्ट रखवाई है। सो ये पीपल शुड नो बिफोर कॉलिंग एनीवन, उनके नंबर्स, उनकी फेक आईडी, ये मजाक नहीं है, इट इज अ सीरियस क्राइम। सो आई थिंक पीपल शुड नो दिस। ग्रेट, वंडरफुल। ठीक है, हम ना अब अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप एक कंप्लेंट जो है वो फाइल हो गई, उसका प्रोसेस क्या कोई हमारा कोई डिफाइंड है कि कितनी देर के बाद आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा, और कितनी देर के बाद वो जो कंप्लेंट है वो उसको क्लोज कर दिया जाएगा? डू यू हैव एनी आइडिया, या आप हमें गाइड करना चाहें कि वो क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एफआईए जो है एक्शन लेता है, एफआईए आप सबमिट कर दो फॉर्म, ठीक है, उसके बाद एफआईए, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल के आ रही हैं मसले ये वाली साइबर क्राइम के, तो ये दिन लगते हैं आपके अराउंड 1 हफ्ता, एफआईए गेट्स बैक टू यू। सो विद इन 1 मंथ एफआईए डू गेट बैक टू यू, और सॉरी विद इन मंथ नहीं, सॉरी विद इन अ वीक, और 1 हफ्ते के बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और वो आपको कहते हैं कि जी आप आए, कॉल कॉन्टेक्ट, दे गेट बैक टू यू ईदर थ्रू मैसेज और थ्रू योर ईमेल, या जिस तरीके से आप आए और आप आपके अपनी स्टेटमेंट दें। वो स्टेटमेंट देने वाला जो टाइम होता है, उसके बाद से जो है अराउंड कोई आप फ्यू वीक्स कह दें लग जाते हैं। लेकिन अगर इस बंदे ने आके स्टेटमेंट नहीं दी और एफआईए को कांटेक्ट नहीं किया दोबारा, तो 3 दिन में वो एफआईए मैटर क्लोज कर देता है। तो ये भी एक चीज है कि देखिए, अगर आप खुद डर रहे हैं, लड़कियां हैं या कोई नहीं करना चाह रही हैं, उनको लग रहा है उनका कॉम्प्रोमाइज होगी चीजें, तो यू शुड देन हायर समवन, अ लॉयर। आपका लॉयर आपके बिहाफ पे जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, वेरिफिकेशन देंगे, और वो जो है आपका मैटर फिर, ये फ्यू वीक्स लगते हैं इसके अंदर। और लेकिन अच्छा, जब तक जिस टाइम पे ये एफआईए के पास ये चीज पहुंच जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं, लोगों को पता होना चाहिए, जब आपने उनकी वेबसाइट पे ये कंप्लेन लॉन्च की, एफआईए की वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताया था, उसमें फॉर्म फिल किया, आप उसकी
सबमिट करने से पहले उसकी एक पिक्चर ले लें उसकी, और वो आप अपना जो आपको बंदा हरास कर रहा है जिस तरीके से भी, कोई लड़का लड़की जो, उसको आप ये भेज दें कि देखो मैंने ये FIA को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम्हारे अगेंस्ट अब एक्शन लिया जाएगा। सो ये एक तरीका होता है कि टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग फर्दर हार्म, कि कल को वो खुदा ना खास्ता कोई पिक्चर्स लीक हो, वीडियोस वगैरह, तो वो एक ये बहुत जरूरी चीज है। एवरीबडी शुड नो दिस, कि वो हर तरह का रिकॉर्ड सेव करें जब वो कंप्लेन लॉन्च करें। अगर वो लेटर में भेज रहे हैं या कंप्लेंट फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, उसकी पिक्चर लें, उस बंदे को भेज दें, उसको जरूर ये इन्फॉर्म करें, उसको देखें, डराना ये की बात नहीं है, जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये करें। लेकिन ये दिस टेक्स विद इन इनिशियल लेवल पे 1 हफ्ते में वो दे गेट बैक टू यू FIA, और फिर 3 से 4 दिन आप स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग का टाइम होता है, और फिर वो फ्यू वीक्स में दे, अगर मैटर बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, जैसे कि अगर सीरियस, कोई बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, नॉन अवेलेबल टाइप, तो वो फिर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, उसमें कोर्ट जो है वो जल्दी वारंट दे देता है। तो ये डिफरेंट इसके हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमना, मलिहा कह रहा हूँ, सॉरी हमना। अच्छा हमना, हम जो है वो सेशन जो है वो रैप अप कर रहे हैं, 30 मिनट्स हमारे हो गए हैं। जाते जाते 1-2 सवाल आपसे फाइनल जो है वो आपसे करूंगा। अच्छा, अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं यार कि हमने अगर कंप्लेन की तो बदनामी होगी, मतलब खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और हमारे जो उस बच्चे पे गुजरी होती है या बच्ची पे गुजरी होती है, उसके माँ बाप देख रहे होते हैं, और बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक तो आपसे ये, आप प्लीज उन लोगों को, क्योंकि देखिए इस सेशन के जो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोगों को आगाही दें, लोगों को बताएं, कि अवेयरनेस दें कि जी देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो लॉज हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं और एक्शंस लिए जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो एक फैक्टर है हमना, कि लोग क्या कहेंगे या बदनामी हो जाएगी, आप ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे जो विक्टिम्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बात तो सेंसिटिव है, इस देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई जाके बोल्ड हो जाए, और देखिए इसमें डर है, हर इंसान को डर लगता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। मैं मैसेज ही देना चाहूंगी कि प्लीज, अगर कोई लड़की है जो कि अनमैरिड है, और जाहिर है देखिए दीज थिंग्स हैपन, यू एक्सचेंज डेटा, पहले बी केयरफुल कि आप यू आर माइनर, और आप बच्चे, आप ये गलत तरीके से चीजें यूज ना करें, नंबर 1। ऑलवेज बी श्योर कि आप जिस बंदे को अगला किसी भी तरह का डाटा दे रहे हैं, प्लीज उसको ये रियलाइज करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हो रहा है, ये हमेशा सेव होगा, ये रह जाती हैं चीजें। दूसरा ये कि अगर हो गया है, ठीक है, अब ये एक बंदा है जो पागल है, और वो आपके पीछे इस तरह थ्रेटनिंग और बुलिंग और हो रही है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो आप उसकी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पेरेंट्स प्लीज इन्फॉर्म, अगर आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, कोई आप खुद अगर इतने मेच्योर इनफ हैं, सो आप खुद अपना लॉयर रख ले लें, ठीक है। पुलिस में भी जा सकते हैं, नंबर 1। आपका अगर कोई पुलिस में आपको लगता है कि कन्वीनियंट है, पुलिस में भी आप जा सकते हैं, एटलीस्ट पुलिस ऑफिसर को ये कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे। लेकिन पुलिस के अलावा आई थिंक ये FIA का बेटर साइबर क्राइम का सिस्टम है। लेकिन मेरा मैसेज ये होगा, प्लीज डरे ना, आप खुद जाएं। इस साइबर क्राइम में आपको किसी बड़े की जरूरत नहीं है, आप FIA की फॉर्म फिल करें, प्रूफ रखें, और उस बंदे को दिखाएं कि देखो आई हैव टेकन एन एक्शन अगेंस्ट यू, तो बी रेडी कि कल को तुम्हारा अरेस्ट भी आ सकता है, वारंट तुम्हारे ऊपर, तो यू विल बी बिहाइंड द बार्स। तो एटलीस्ट कि ये खुद एक्शन लें, डरे नहीं। ये चीजें बहुत क्रिटिकल हो सकती हैं, लोगों की जाने गई हैं, ये साइकोलॉजिकल सारी जिंदगी के लिए मैटर्स रह जाते हैं, ठीक है। काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग वाली लेवल तक पहुंचाए ना। और मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल एक मैसेज होगा कि जो भी आपको बुली करता है ना, ये जो भी बंदे ऑनलाइन, लड़कियां लड़के जो भी एक दूसरे को, ये मेंटली बहुत वीक होते हैं। ये बुली जो होते हैं ना, ये बहुत वीक लोग होते हैं, बुली वाले। और ये आपको हमेशा इनको इनको जो है ना, इनके ऊपर नीचे नहीं होना, आपने इनसे ऊपर होके दिखाना है, इनको बताना है कि देखो वी विल नॉट फॉर योर बुलिज्म, ये आपका तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन है, और मैं आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट फॉर इट। तो आई थिंक नेवर बी वीक, उसको फॉरगिवनेस, सॉरी, ये वो चीजें ना बोलें, क्योंकि वो बंदा कभी भी आपका नहीं छोड़ेगा। ये मेरा पर्सनल मैसेज है कि प्लीज, आपके पास चीजें आ गई हैं, हमारे बड़ी अच्छी ये गवर्नमेंट ने हमारे ये एक्ट बनाया है, तरीके बनाए, FIA बहुत अच्छा तरीके से मैटर्स कर रहा है रिजॉल्व। आई थिंक यू शुड टेक अप दिस, नेवर फॉल फॉर एनी, नेवर बी अ विक्टिम, नेवर।
एग्रीड एग्रीड। अच्छा, ये भी कहा जाता है यार इग्नोर करो, बड़े भी आपको कहते हैं ना यार इग्नोर करो, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। तो आप क्या एडवाइस करती हैं कि वाकई हमें इन मैटर्स को इग्नोर करना चाहिए, या कि फिर हमें इसको प्रॉपर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो? अच्छा, ये भी रिलेटिव बात है, बिल्कुल है कि देखिए पहली बात ये कि इग्नोर डिपेंड करता है कि क्या वो है। अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, जी आई लव यू और अजीब सी बेकार बातें कर रहा है, उस लेवल तक तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली उस लेवल तक अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप जाएं, हर फिर ये FI, लेकिन उस लेवल तक आप इग्नोर। पेरेंट्स कहते हैं कि अगर वो बंदा पागल कोई है और ब्लैकमेलर है, वो कल को कहता है कि मैं तुम्हारे ये वीडियो लीक कर दूंगा, और वो सारी जिंदगी के लिए उसकी जिंदगी तबाह होने की बात है, तो आई थिंक उस डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक जो सीरियस मैटर है उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उस पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे कॉल शॉल्स हो गई, या कोई आपका पुराना फ्रेंड कॉलेज ये पीछे पड़ा हुआ है, स्टॉक कर रहा है आपको, फेक आईडीज भी एक लेवल तक इग्नोर की जा सकती हैं। जो फेक आईडीज देखिए, उसपे वो बंदा कल को अनऑथराइज, वो आपका नाम शनाख्त यूज करके आपको कल को वो कोई क्राइम भी कर सकता है। तो ये कुछ लेवल तक इग्नोर कर सकते हो चीजें, कुछ लेवल तक आई थिंक सीरियस जो मैटर्स होते हैं उसमें डोंट इग्नोर। पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी कि ये स्टीरियोटाइप से बाहर निकलें। लोग, बच्चों के मसले होते हैं, इनको प्लीज देखें, रिजॉल्व करें, बच्चों को भी डर खत्म करें एक दूसरे के बीच में, सोसाइटी को बेहतर बनाए, ना कि डरा के बिठा के आपने हर चीज को रखा हुआ है। सो आई थिंक यू शुड प्लीज, मतलब स्पेशली फॉर योर डॉटर्स, बी देयर फॉर योर डॉटर्स। एंड ऐसा कोई मामला आए तो आई थिंक डॉटर्स शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गो टू देयर पेरेंट्स। अगर खुद हैंडल नहीं कर सकती कि प्लीज ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये आप टेकअप। और मैं आपको बताऊं, ये बुलीज जो होते हैं ये यूजुअली इमेच्योर लोग ही होते हैं, छोटे ही होते हैं, यंग। ये पेरेंट्स के और इन्वॉल्वमेंट तक ही चुप हो जाएंगे, तो ये मामला उधर ही चुप हो जाएगा। सो ये चीजें जरूरी हैं हमारे माशरे में, जरा ये सोसाइटी को चेंज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमना, वंडरफुल वंडरफुल सेशन। इट इज बहुत जबरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो मैं क्वेश्चन और भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कहे थे, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो हमने ये देखा है कि अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे बच्चे जो कि बुली करते हैं और जो कि डिफरेंट फोरम्स पे जाके, फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाके लोगों को तंग करते हैं, आप ऐसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने बच्चों कि किस तरह से ग्रूमिंग करें, तरबियत करें, या वो किस तरह से उन पे नजर रखें कि वो इस तरह की चीजें ना कर सके? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई बात है, आपने अपने बच्चे को इंटरनेट तो दे दिया है, क्या रीजन होता है कि बाहर भी डेवलप्ड नेशंस में भी जो छोटे बच्चे हैं उनको लोग अपना इंटरनेट नहीं देते इस तरह फ्री हैंड। तो आप नजर रखें, पहले अगर बहुत छोटा है वो चाइल्ड इज इट्स अ चाइल्ड, ठीक है, 12 साल से कम में, तो उसको नजर रखें वो देख क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। आई थिंक कोई इस तरह अब कोई बड़ा बंदा जो सुन रहा है, बड़ा मतलब कि स्कूल कॉलेज का, वो उसको अगर अगर उसको ये पता होना चाहिए कि देखो ये गलत चीज है, दिस इज अ क्राइम, दिस इज ऑफेंस दैट यू आर डूइंग एंड द एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। सो उसके हिसाब से पेरेंट्स गाइडेंस होती है कि वो देखें, सुपरवाइज करें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को फ्री हैंड ना दें, इंटरनेट का ना दें। और ना सिर्फ साइबर क्राइम की वजह से, बहुत कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये बच्चे वैसे ही इंटेलेक्चुअली भी बड़े वीक हो जाते हैं सारा दिन, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम है हर किसी एक्शन क्या लिए जाता है? Great. Hamna, can you hear me? Hamna, can you hear me? I can't hear you. Can you hear me now?
Hello, Hamna, can you hear me? Thank you very much, everyone, for joining us today and watching us today. It was a wonderful session. हमना ने हमें बहुत जबरदस्त बातें बताई और बड़ी इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहा एंड अभी कोशिश करें हम कि हमना से हम दोबारा रिकनेक्ट करें, लेकिन समहाउ उनसे राब्ता हो नहीं पा रहा है. लेकिन आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन. और जिस तरह उन्होंने बताया कि आप जो है जब भी कोई ऐसा मामला हो साइबर क्राइम का, तो आप उसे इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि उस पर कोई एक्शन लिया जा सके. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से क्रेडिट गोज टू आवर डिपार्टमेंट FIA, जो बाकी लोग हैं काम कर रही हैं और बहुत उन्होंने कामयाबी के साथ बड़े बड़े केसेस भी जो है वो रिजॉल्व किए हैं. तो आज हमारी एक ये छोटी और रत्ना कोशिश थी कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करें कि किस तरह आप लोग जो है वो कंप्लेन जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं. आइए हमना ने हमें दोबारा ज्वाइन किया और हमना से हम बात करते हैं. जी हमना, I'm extremely sorry for that. ये जो हुआ बीच में इंटरप्शन. कोई इशू नहीं. अच्छा हमना, खैर मैं तो सेशन रैप अप कर रहा था, लेकिन आप आगे तो वंडरफुल. अच्छा, लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आवर फॉलोअर्स, व्यूअर्स दैट जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, क्या कहना चाहेंगे आप साइबर क्राइम के बारे में? अच्छा देखिए, वही मैंने जो आपको बातें की, ये सारा ही इटसेल्फ वाज अ मैसेज. लेकिन आई थिंक कि प्लीज सबसे पहले इंटरनेट यूजेज को मजाक ना समझें और ऑलवेज जो है अपने वायरस प्रोटेक्टेड रखें कंप्यूटर्स को. किसी का भी कंप्यूटर ईमेल हैक हो सकता है, ठीक है, उसमें जो कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी कमिट किया जा सकता है, साइबर टेररिज्म वगैरह एक्सेट्रा. दूसरा ये कि जो है आप यही मेरा मैसेज था कि जैसे कि बच्चे हैं उनको प्लीज सुपरवाइज करें पेरेंट्स. सेकेंडली आई थिंक इफ यू आर स्केर्ड, आई थिंक डोंट, वही वाली बात की डोंट बी स्केर्ड, कॉन्टैक्ट फॉर लॉयर अगर आपको डर लग रहा है. कुछ चीजें जो है इग्नोर नहीं की जा सकती हैं, सो वो उन चीजों को इग्नोर ना करें. और हमेशा रिकॉर्ड रखें साइबर आपका जो स्टॉक कर रहा है, जो स्पैम कर रहे हैं, स्पैमिंग, स्पूफिंग, ये सारी चीजें ये कवर करता है आपका कानून. और उसको प्लीज रिकॉर्ड रखें, डिलीट ना करें डर के मारे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके काम आएंगी उस बंदे के एक्शन. सो ऑलवेज स्पीक अप एंड नेवर बी अफ्रेड. Thank you very much, Hamna, for today's session and for today's discussion. I think it was a wonderful session और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मैं पर्सनल लेवल पर अगर मुझसे भी पूछें तो मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ है. अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमना का अपना यूट्यूब का चैनल भी है. तो हमना, यू वांट टू शेयर अबाउट योर यूट्यूब चैनल? यू कैन शेयर. श्योर. अच्छा, मैंने रिसेंटली बेसिकली जो लॉ रिलेटेड चीजें, लॉ के लेक्चर्स जो हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. मेरा यूट्यूब चैनल रिसेंटली मैंने शुरू किया था. इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो क्योंकि ये लोकल LLB जो कर रहे हैं, मैंने लोकल पाकिस्तानी लॉज कवर किए हुए हैं. ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है, ये वो लोग जो जुडिशियल एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी है, और ना ही सिर्फ ये वकीलों के लिए, ये उनके लिए भी है जो ये नॉर्मल अवाम है. तो जैसे पुलिस अरेस्ट कैसे करती है, उसके तरीके क्या होते हैं. पुलिस अगर आपको किसी अब्यूजिव तरीके से कुछ आपको कर रही है, तो आपके पास राइट्स क्या है, आपके किस तरह को वो आपको सर्च, ये सारी कानून मैं कोशिश कर रही हूँ कि चैनल, इसका नाम है लॉ विद बैरिस्टर हमना, और यूट्यूब पे है. इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि हर क्रिमिनल से लेके सिविल प्रोसीजर, सिविल क्रिमिनल मोस्टली, वो मैं आप समझ लें 15 मिनट, 10-20 मिनट से ज्यादा, 10 से 20 मिनट से ज्यादा वो नहीं करती हूँ, और वो मैं पूरा कंसाइज कवर कर देती हूँ. तो वो एक इस तरह की जुबान में कोशिश करती हूँ ताकि एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड. So I think agar if you want to know more about it, and especially for the lawyers out there and also the people who really want to educate themselves and know what the law is actually, कानून है क्या, जिस मुल्क में आप रह रहे हो उसका कानून आपको मालूम करना बहुत जरूरी है. तो you can always go and check out my channel. उसके अंदर मैंने हर चीज मोस्टली कवर करने की कोशिश की है. थैंक यू हमना, अगेन शुक्रिया. थैंक यू सो मच. हाँ, थैंक यू हमना, थैंक यू. आप सबका भी शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन कि आज आपने हमारा जो शो है वो देखा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. जिस तरह हमने हमें गाइड किया और बताया कि साइबर क्या और साइबर क्राइम अगर लेट्स सपोज आपके साथ हो गया और आप विक्टिम है, तो आपने किस तरह से अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करानी है.
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे एक बात जाते जाते जरूर कहूंगा कि प्लीज इग्नोर ना करें, जरूर राब्ता करें साइबर क्राइम सेल से, देखें कि किस तरह इस मसले को रिजॉल्व किया जा सकता है। समटाइम हम क्या करते हैं कि हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो अगला बंदा होता है उसको हिम्मत मिल जाती है, उसको हौसला मिल जाता है, वो कहता है कि ठीक है और जुल्म करो और दबाओ। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसा ना करें, आप जरूर जो हमारे जो फॉरम्स हैं उनसे राब्ता करें। ये आज हमारी कोशिश थी और क्रेडिट गोज टू हमना जैन बैरिस्टर साहिबा कि उन्होंने आज इसने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन की और हमें बताया कि क्राइम, साइबर क्राइम नाम की चीज क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनकरीब एक नए शो, नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर। थैंक यू।